तो आज डे 2 था हमारा थिम्पू में, और डे 2 पे हम थिम्पू में भूटान्स लाइव म्यूज़ियम देखने के लिए गए थे। लिविंग म्यूज़ियम का एंट्री फ़ी जो था वो 1000 पर पर्सन था, और बच्चों के लिए 500 पर पर्सन था, जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। सो वी आर एट भूटान्स लिविंग म्यूज़ियम, और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि इन दिस लिविंग म्यूज़ियम दे इंट्रोड्यूस यू टू देयर लोकल कल्चर, ट्रेडिशन, लोकल cuisine and culture and dance and everything. So we are gonna experience this very soon, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गाइड की शॉर्टेज है और ग्रुप बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ग्रुप्स अभी गए हुए हैं और उसके बाद फिर हमारा नंबर आएगा, फिर हम Take pictures and videos. I'll be your in-house guide for next 1 hour. So if you have any doubts regarding the museum, you may ask me. Okay. Whenever we receive any guest here, we have a culture of offering them this home-brewed wine as a welcome drink. The wine is brewed by wheat. Would you like to try the wine? Yeah. First, for your taste, I'll be serving you just a little. If you like it, let me know. I'll serve you more. The wine is unlimited on service. अंदर जाते ही सबसे पहले उन्होंने हमें अपना लोकल वाइन ट्राई करने को दिया, और वो लोकल वाइन बिल्कुल नॉर्मल अल्कोहल जैसा ही टेस्ट कर रहा था। और जब आप वहाँ पर वाइन लेते हो तो उनका कल्चर ये है कि आप वाइन लेने से पहले, जैसे हम चीयर्स बोलते हैं वैसे ही वो लोग बोलते हैं शे शे शे। तो शे 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 बोलना है 3 बार, और उसके बाद फिर आपको वाइन लेनी है, सिप लेनी है। Cheers. Cheers. Oi. Cheers. 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 Oh my god. Cheers. It was taken in 1958 when the first Prime Minister of India, Pandit Nehruji, and his daughter Indira Gandhi ji visited Bhutan for first Indo-Bhutanese friendship after the independence of India. इसके बाद वो लोग हमें आगे लेकर के गए, जहाँ उन्होंने हमें दिखाया कि भूटान में पहले घर कैसे बनते थे। मतलब पहले सीमेंट वगैरह नहीं होते थे, तो वो लोग वुडन हाउसेस बनाते थे, और वो लोग जब घर बनाते थे तो उसमें साथ में वो गाना गाते थे, और गाना गा गा करके घर बनाते थे। तो ये आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, क्योंकि वो लोग अलाउ करते हैं आपको कि आप भी जा कर के उनके साथ इस तरह से पार्टिसिपेट करें और गाना गाएँ, घर बनाएँ। Back down. Out here you can notice a lot of masks here. This mask will be used during the festival here in Bhutan. Name of the festival is known as Techu in our language. During this Techu festival, highly trained monks, they wear different masks and then perform mask dance. Among all of them, you can notice the red marks there. The red marks is the marks of Acharya. He is known as Acharya in Sanskrit. Whenever other mask dancers, if they make any mistake during their performance or something's wrong with their costume, he goes in between and corrects them in a very funny way so that people won't notice any mistakes here. This mask dance festival, it's very auspicious to watch, which happens for 4 days every year in the month of September or October. This year it's in the month of September here. Yogi or Lama. Tukpakinle is simply his name. Each and every god that we know of, they will have different powers and weapons of their own to subdue demons. But he uses his phallus as a weapon to subdue demons. That's why he is also known as the divine madman or the crazy yogi of Bhutan. In Bhutanese houses, you can see the shape of phallus hanged on door, painted on newly built buildings. So we hang it on 4 corners of rooftop there, just to get rid of evil eyes here in Bhutan. Just like in some parts of India, people believe in hanging lemons and chilies on their door, or they put on kala tika to get rid of evil eyes. In Bhutan, we use this shape of phallus here. So he also has his fertility temple on the way to Punakha, named as Chimi Lakhang. Whenever married couples here in Bhutan, if they have fertility problem, they visit his temple and pray there. After praying, we believe he will bless us with a child. Until now, he has never disappointed any couple. That's why his temple is very famous even among the foreigners here in our country. After this, we will be going to here. और भूटान म्यूज़ियम में आपको इनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। ये फेमस पर्सनालिटी है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इनको इंडिया में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एक्चुअली ये कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है, बट उसके बावजूद ये बहुत सारे आर्ट वर्क्स और आर्किटेक्चर ये सब सारा बनाते हैं। ये जितने भी पेंटिंग्स लगे हुए हैं सारे पीछे, ये सब इनके ही बनाए हुए हैं। तो
for his art exhibition. You can see his photo there. That photo was taken in 2010 in New Delhi. उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम के अंदर गए जहाँ पर उन्होंने हमें वहाँ की स्पेशलिटी बटर टी और स्वीट एंड राइस ट्राई कराया, जो कि भूटानीज़ बटर टी बहुत फेमस है गाइस। तो बटर टी में होता ये वो बनाते ऐसे हैं कि वो बटर डालते हैं, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालते हैं, बट कोई शुगर नहीं होता है, फिर उसे ब्लेंड करके और बटर टी बनाई जाती है। फीकी चाय जैसी लगती है, अदरवाइज एल्स इट वाज गुड। और उसके बाद हमने वहाँ पे उनका लोकल डांस देखा जो कि अच्छा था, बहुत एंटरटेनिंग लगा। फिर उन लोगों ने हमें ऑफ़र किया कि उनके साथ डांस करने के लिए, तो वो लोग आपको सिखाते भी हैं कि उनको कैसे लोकल भूटानीज़ डांस कैसे किया जाता है। तो हमने उनके साथ बहुत एंजॉय किया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर एक स्पिनिंग पॉट भी था जहाँ पर जिसमें आपको कॉइन्स डालने होते हैं, और अगर आप कॉइन्स डालोगे और अगर आपके पॉट में चला गया कॉइन तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपको 5 कॉइन्स मिलते थे। उसको स्ट्रेच करो ना, पकड़ो। उसके बाद हमने वहाँ पर आर्चरी की, क्योंकि आर्चरी भूटान का नेशनल गेम है, तो हमने वहाँ पर ये आर्चरी की थी। अगर आप इसमें अच्छा निशान लगा देते हो तो फिर वो लोग आप विक्ट्री डांस करते हैं, तो वहाँ पर हमने फिर विक्ट्री डांस भी करवाया था। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस भूटान म्यूज़ियम में अच्छा रहा। लिविंग म्यूज़ियम में आप जा सकते हैं बिल्कुल, और आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वन टाइम विजिट ही।